तो आप देख रहे हैं खास बात आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी दाउस के दौरे पर है। दाउस में मुनक़िदा दूसरे दिन के इजलास में जगन मोहन रेड्डी ने शिरकत की। दूसरे दिन का इजलास कोरोना की सूरत हाल पर मुनक़िद हुआ। इस दौरान जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि मुल्क के मुकाबले में रियासत में कोरोना से मरने वालों का फ़ीसद बहुत कम है। हमने 3 चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो दी, वो है टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट। इसके अलावा कोरोना के वबा के दौरान वॉलंटियर्स के जरिए हर घर का तकरीबन 44 मरतबा सर्वे किया गया ताकि कोरोना की बढ़ती वबा पर काबू पाया जा सके। Nobody ever anticipated. At least we have not seen that kind of pandemic in our generation. So it was something that was unprecedented, and the entire healthcare system, which was present till then, had to be re-looked into in order to prevent something, in order to be a formidable force. If at all something like this were to reoccur, then I think this actually taught us quite a few lessons, especially on, especially moving on to the importance of preventive and curative care, and also making sure that the healthcare system is available to everybody, is accessible to everybody, and also making sure that it is affordable to everybody. Now we are actually opening up 16 medical colleges. So covering taking every parliament as a unit so that there is uniformity in distribution. And a teaching hospital and a medical college together would provide for postgraduate students to come in and provide for the healthcare. So in the state of Andhra Pradesh, we have widened that scope, and we have come up with our own insurance scheme. It's called YSR Arogyashri scheme. I named it after my father because that's the kind of priority. रियासत में दलित और ख़वातीन महफूज नहीं है। विजयवाड़ा के दासरी भवन में अपोजिशन और दलित तंजीमों के नुमाइंदों का एक इजलास मुनक़िद हुआ। CPI की क़यादत में मुनक़िदा इजलास में मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों और दलित तंजीमों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। CPI के रियासती सेक्रेटरी रामाकृष्णा ने कहा कि जब से रियासत में जगन हुकूमत कायम हुई है, ख़वातीन पर हमलों में इजाफा हुआ है। दलित तंजीम के सदर श्रावण कुमार ने कहा कि रियासत में आए दिन दलितों पर हमले हो रहे हैं। इस सिलसिले में बहुत जल्द गवर्नर से मुलाकात करते हुए याददाश्त पेश करने की बात कही गई। इजलास के दौरान हुक्मरान जमात के MLC के कत्ल के वाक़े पर भी इजहार ख्याल किया गया। Everywhere there is atrocities are going on Dalit youth and also women of Andhra Pradesh. Recently, one Dalit youth, he is the driver, his name is Subramaniam. He was killed by the ruling party MLC. Ananta Udaya Bhaskar, he is the ruling party MLC. He killed the driver. Moreover, he went to his parents with his dead body. That is the interesting thing. Nowhere in India happened like this, because they are in power, they are not caring this Indian Penal Code, they are not afraid of anybody. Even police are also either directly or indirectly helping towards the ruling party. So everywhere these people are doing all these mischievous things. On behalf of CPI, we are condemning the brutal killing of this driver Subramaniam. Legislative Council has to act in accordance with the law, but violating all the rules and regulations. He himself involved in a murder case. He himself killed with his henchmen, with the aid of his henchmen, and a police registered case against him under section 302 of IPC and provisions of SC/ST. If such brutal incidents are being continued, I don't think so people will live peacefully in this state. We have decided, all parties have decided to meet Honorable Governor and Chairman of MLC, Chairman of Legislative Council, and we request him, we will also submit a representation to take off his MLC membership within no time. If such things are not even acted in accordance with the law.
आज़मीन हज के लिए ज़िले सतह पर ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश हज कमेटी की चेयरमैन गौसुल आज़म ने अपने दौरे शुमाली आंध्रा के मौके पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग और हाजियों के मसाइल के हल के लिए ज़िले सतह पर कमेटियां भी तश्कील दी गई हैं और खुसूसी नुमाइंदों का भी इंतखाब अमल में लाया गया है। దాదాపు 1416 మంది అప్లికేషన్లు పెట్టుకున్నారు. అందులో 1201 మందికి మనం ఆన్లైన్ డ్రా ద్వారా ఎంపిక చేయడం జరిగింది. గతంలో కంటే భిన్నంగా ఈ హజ్ యాత్ర ఈ సంవత్సరం జరగబోయేటువంటి యాత్రలో ఎంతో ఉన్నతంగా వాళ్ళకు సేవలు అందించాలనేటువంటి ఒక మంచి ఉద్దేశంతో గతంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా జిల్లాల వారీగా ఈ హజ్ పరిశీలకులను కూడా ఎంపిక చేయడం జరిగింది. వీళ్ళందరూ ఆల్రెడీ మా హజ్ కమిటీ మెంబర్స్గా ఉన్నారు. అందులో మన ముందుగా విశాఖపట్నం నుంచి మన ఇమ్రాన్ ఉన్నాడు. అలాగే ఈస్ట్ గోదావరి నుండి అయితే మన ఇబాదుల్లా గారు ఉన్నారు మెంబర్స్గా. విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్నానికి ఈ 3 జిల్లాలకు कर्नूल में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की कौमी वर्किंग कमेटी के रुकन अब्दुल वारिस ने मीडिया से बात की। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत मुल्क में नफरत की सियासत को हवा दे रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत महंगाई से आवाम की तवज्जो हटाने के लिए नफरत में इजाफा करने वालों की हौसला अफजाई कर रही है। इन्होंने नफरत के बजाय महंगाई पर कंट्रोल करने और तरक्की पर तवज्जो देने की हुकूमत से अपील की। किस तरफ जा रहे हैं समझ के बाहर है। अवामी मसाइल जो महंगाई है, नौजवानों को नौकरियां हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करने के बजाय आज की हुकूमत नफरत को फ़रोग़ दे रही है। नफरत के मसाइल इतने आगे कर दे रही है कि हकीकी मसाइल पुश्ते पनाह पड़ गए हैं। कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि लोग भड़क उठे हुकूमत के खिलाफ। ऐसा मामला हमको सामने आ रहा है। जैसे हाल ही में जैसे ज्ञानवा पीर मस्जिद का मामला है या मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का मामला है। तारीख में हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में एक जमहूरी हुकूमत इस तरह के काम करवा रही है। ये मतलब क्या है? असली मसाइल को आप भूल जाइए, नफरत की सियासत को बढ़ाकर हुकूमत करने के मौक़िफ़ में है। इनके पास कोई एजेंडा नजर नहीं आ रहा है। ये देश को बचाने आए हैं या देश को बर्बाद करने आए हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। पहले जो देश में अमन शांति थी, उस अमन शांति को भंग करने में मौजूदा हुकूमत का बहुत बड़ा हाथ है। और जितने भी स्कैम से बड़े बड़े, इसको छुपाने के लिए नफरत को आगे किया जा रहा है। मरसीदा शख्स को तमाचे मार मार कर मार दिया गया मुसलमान समझ के, लेकिन वो जेल निकला। अरे कहां तक आप ये अफीम पिला रहे हैं? आप नफरत की समझ के बाहर है। अभी भी वक्त है, हालात को बदलिए। महंगाई जो बढ़ रही है, महंगाई को कंट्रोल कीजिए। 80 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, तेल 200 रुपए का पैकेट हो गया है। यहां तक कि गेहूं भी आने वाले दिनों में स्कैर्सिटी, उसकी कमी महसूस हो रही है। अवाम की हालत क्या है? जो रोजाना 200-400 रुपए जो कमाएगा वो आदमी खाएगा क्या? यानी आपके खिलाफ ठहरा। आप समझ के निजाम समझ नहीं रहे। लोगों को आपके ऊपर से ध्यान हटाने के लिए जो ड्रामा आप रच रहे हैं, ये ड्रामा ज्यादा दिन अशियाए ज़रूरिया की बढ़ती कीमतों को कम करने का मुतालबा करते हुए 28 मई को रियासत भर में AIYF की जानिब से एहतजाज किया जाएगा। AIYF के सेक्रेटरी ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि 28 तारीख को तमाम कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाज किया जाएगा। పిలుపు మేరకు ఈ నెల 28వ తేదీన పెరిగిన ధరలను అదుపు చేస్తూ పెంచిన ధరలన్నీ తగ్గించాలని దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళన పిలుపునిచ్చారు. అందులో భాగంగా 28వ తేదీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అన్ని జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా నిర్వహించాలని రాష్ట్ర సమితి నిర్ణయించింది. ముఖ్యంగా ఈరోజు పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ ధరలు విపరీతంగా పెరిగి నిరుద్యోగ సమస్య పెరిగిపోతుంది. ఉద్యోగాలు లేవు, ఉపాధి లేదు. వీటిపైన సమస్యలపైన ఏమాత్రం కూడా కేంద్రీకరించకుండా, దేశంలో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్న వాటిపైన ఏం ఆలోచించకుండా ధరలు పెంచడమే ధ్యేయంగా ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా విపరీత ధరలు పెంచడం చాలా బాధాకరం. అందుకోసం కేంద్రంలో, రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వాలు రెండు కూడా ధరలు పెంచి ప్రజలపై భారం మోపకుండా సామాన్య ప్రజలకు న్యాయం చేయాలని కోరుతా ఉన్నాం. వీలైతే మీరు వెంటనే ధరలని అన్నిటి కూడా ఈ డీజిల్, పెట్రోల్, గ్యాస్ అన్ని కూడా GST పరిధిలోకి తీసుకురావాల్సిన కోరుతూ, అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాలు, దేశంలో ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయండి. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నీ కూడా ఉపాధి కల్పించే విధంగా, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఉద్యోగాలు కల్పే విధంగా
एमएलए डॉक्टर के एस सुधाकर ने इल्जाम लगाया कि चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर के जरिए नाफिज किए जाने वाले फलाही स्कीमों को गलत अंदाज में पेश कर रहे हैं। रुकन असेंबली ने चंद्रबाबू नायडू पर हर मामले को सियासी रंग देने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने इंतखाबात से पहले किए गए तमाम वादों को पूरा किया है। 3 साल जगन दौरे हुकूमत में इस्तेफादा कुरंदगान के फी खानदान को 1 लाख से 5 लाख रुपए तक दिए गए। वाईसीपी हुकूमत समाजी इंसाफ के नाम से 26 मई से 29 मई तक रियासत भर में बस के जरिए तशहीर करेगी। సామాజిక న్యాయబేరి 26వ తారీఖు నుంచి 29వ తారీఖు వరకు మన రాష్ట్రంలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ మంత్రులంతా సపోర్టివ్గా ఒక సైనికుల మాదిరిగా ఒక వెనుకబడిన బడుగు బలహీన వర్గాల జాతుల బిడ్డలుగా మేము అన్నగారికి సపోర్టింగ్గా ఒక బస్ యాత్ర మొదలుపెట్టారు మా మంత్రులంతా। 3 సంవత్సరాలు మాత్రం ఇంట్లో కూర్చున్నారు వాళ్ళంతా। కానీ ఎన్నికలు దగ్గరకు వచ్చే కొద్దీ వాళ్ళు మళ్ళీ ఇది ప్రతిపక్ష నాయకుడు వాయిస్ పెంచాడు। ఏం వాయిస్ అంటే ఆయన చెప్పేది। कर्नूल जिला कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में स्पंदना प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कलेक्टर पी कोटेश्वर राव ने स्पंदना प्रोग्राम में शिरकत की और आवाम से शिकायत मौसूल की। उन्होंने अफसरान से आवाम की शिकायत को जल्द अज जल्द हल करने की हिदायत दी। इस प्रोग्राम में जॉइंट कलेक्टर रामा सुंदर रेड्डी और मुख्तलिफ महकमों के अफसर मौजूद रहे। जिला कृष्णा के मछलीपट्टनम में मंगेरा पौड़ी साहिल पर 2 बी फार्मेसी तालबात समंदर में डूबकर उनकी मौत हो गई। भीमावरम विष्णु कॉलेज की तालबात 22 साला परमिला और पूजिता समंदर की लहरों की जद में आ गई। मरीन पुलिस ने लड़कियों को समंदर से साहिल पर लाया। 20 मिनट के अंदर ही दोनों की मौत हो गई। तालुका पुलिस मौके पर पहुंची। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। उधर विशाखापट्टनम में शादी की रसूमात की अदायगी के दौरान दुल्हन के अचानक गिर जाने और फिर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत के वाक़े का नया मोड़ सामने आया। पुलिस की जांच में पता चला है कि सरोजना किसी और लड़के से मोहब्बत करती थी। अपने आशिक से शादी करने और तयशुदा शादी को टालने के लिए जहरीली अशिया का इसने इस्तेमाल किया था। विशाखापट्टनम पुलिस ने मधुरोड़ा इलाके की रहने वाली सरोजना के मुश्तबा मौत का मामला दर्ज करके मुख्तलिफ जावियों से जाँच की। पुलिस ने सरोजना के फ़ोन कॉल्स, रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर किए गए पोस्ट के तफसीलात से मौत के मामले को हल कर लिया। पुलिस को पता चला कि सरोजना मोहन नामी लड़के से 1 साल से मोहब्बत करती थी। शादी से 3 दिन पहले अपने आशिक के साथ इसने सोशल मीडिया पर चैट भी किया था। चैटिंग के दौरान इसने कहा था कि वो ये शादी नहीं करना चाहती, वो अपने आशिक के साथ घर से भाग जाना चाहती है। दुल्हन अपने आशिक के साथ शादी करने में नाकामी पर जहर का इस्तेमाल किया। शादी के दौरान वो बेहोश होकर गिर पड़ी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दो 2024 के असेंबली इंतखाबात में वाईएसआरसीपी को शिकस्त होगी। आंध्र प्रदेश बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के सदर शेख बाजी ने यह बात कही। इन्होंने कहा कि जगन हुकूमत के खिलाफ अवाम में गम और गुस्से की लहर है। शेख बाजी ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी मरकज के फलाही स्कीमात को रियासती हुकूमत की स्कीमात के तौर पर पेश करते हुए सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के साथ हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन भाई हम सब देश में पूरा मिलकर जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हर एक स्कीम के आने के लिए ये राष्ट्र में आके 130 स्कीम्स गवर्नमेंट का इंप्लीमेंट कर रहे हैं। खाली एक नवरत्न के बल ये हंसने की जिंदगी जैसा बना दिया आंध्र प्रदेश का स्टेट का ये पूरे आदमी का जिंदगी। आप लोग करते ऐसा कोई गलती का काम आप नहीं मालूम से पब्लिक को जमा कर पूरे को हमसे जवाब दिएंगे। पब्लिक रिवोल्ट होकर आपको जवाब देगा। 2024 में आपको चुनाव में आपको उल्टा पलटा हो जाएगा। जेल जाने वाले जेल जाएगा, घर जाने वाले घर जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का ये हमारा वार्निंग है। आप जीव जतन रख ले। इस बुलेटिन में फिलहाल इतने ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।